So good morning everyone. Online में सभी को very good morning. So let's start with the theories. So trade based theory we have discussed in the previous class, and it focuses on what? Stable and measurable traits. Ocean theory नहीं बोलेंगे वैभव, इसको हम ocean model बोलेंगे, right? Trait based theory है which gives us the big five personality model or the ocean model. This is very important. And what are those five? O for openness, C for conscientiousness, next E for extraversion, A for agreeableness, N for neuroticism, right? So what are the फाइव कोर ट्रेड्स पूछेगा तब भी आपको ये सेम आंसर देना है. ओशन मॉडल पूछेगा तब भी सेम आंसर देना है. ओशन ट्रेड्स पूछ लेगा तब भी same answer ही देना है. So this is the description we have discussed yesterday. Like openness is related to what? Open to new ideas. Next, conscientiousness is related to organized, disciplined, goal oriented, and high scorers are reliable, punctual, and self regulating. Extraversion means sociable, energetic, assertive. Agreeable means cooperative, empathetic, and kind. Emotionally reactive, prone to stress, that is called as neuroticism. So neuroticism में आपको हाई रहना है या लो रहना है? लो रहना है, right? So lower the scores on neuroticism, calmer you will be. You will be calm and resilient. So yesterday I have also shared the notes with you regarding openness to experience. Agar if your openness to experience and you are high on that, then you will be artistic, adventurous, intellectually curious. If you will be low on that, you will be conventional, prefers the routine and the traditional methods, and you will resist the change. Means you are, if you are closed, you will resist the change. Next is the application. If you are high on openness, then what will you have as a personality? You will be innovative. You will be high on adaptability, and you will have what kind of attitudes? What kind of attitudes? Liberal attitudes. Clear? नेक्स्ट कंसाइंटियसनेस में क्या होने वाला है? हाई रहेंगे तो आप किस तरह के रहेंगे? मेटिकुलस, रिलायबल एंड अचीवमेंट ड्रिवन. If you are low on that, you will be disorganized or unorganized, impulsive and procrastinator. आप punctual नहीं रहेंगे. You will not do things on time. Right? हो जाएगा. Laid back attitude जिसको हम बोलते हैं, that is what you are going to show. Right? So हमें high रहना है या low रहना है? High रहना है. Means you need to be more reliable, more trustworthy, more meticulous in terms of planning. Detailing पे आप ध्यान देंगे. Meticulous means फोकस ऑन डिटेलिंग. लिख लीजिएगा उसको. फोकस ऑन डिटेलिंग. द फोकस ऑन डिटेलिंग, दैट इज कॉल्ड बाय मेटिकुलस. क्लियर? चल, नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन. एकेडमिक सक्सेस, जॉब परफॉर्मेंस एंड हेल्थ आउटकम्स. सभी चीजों में, इन वॉट एवर डोमेन यू आर वर्किंग, you will be more organized, more punctual, more planned, more strategic. Right? Next is extroversion, outgoing, talkative, assertive. Right? You are more expressive. Extroversion means you are more expressive. So I have already shared this in our group. So hope you have noted it down. So I'm simply explaining these things. So if you are low on extroversion, you will be introvert, you will be reserved, introspective, and prefers solitude. So some personalities are outgoing, some are inward looking. Application: leadership, teamwork, and social influence. So when you are attracting more and interacting more with the people, you are more sociable, and you will apply these traits in which field? Leadership, teamwork, social influence. Right? सपोज एटीट्यूडनल चेंज में हम परसुएशन पढ़ रहे हैं, तो परसुएट कौन करेगा? इंट्रोवर्ट करेगा कि एक्सट्रोवर्ट करेगा? एक्सट्रोवर्ट. एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट लेके चलने वाले को हम क्या बोलेंगे? भाई जस्ट गो एंड परसुएट समवन. सो राइट, दैट मींस अ सोशल इन्फ्लुएंस इज इन्वॉल्व्ड इन दैट. So all the influencers which you can see on the social media are basically belonging to the extraversion trait. Yes or no? They speak their mind out very clearly without feeling whether they will be judged or not. Definitely everyone who is going to express himself or herself is going to be judged, but you should not have the fear of judgment.
then only you will be more outgoing, talkative and assertive, and you become the voice of the conscience of people. Leader क्या होता है? लीडर वो बातें करता है जो सब सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं, लेकिन वो बोल देता है. That's why he becomes a leader, and he talks of some fundamental issues which concerns everyone. Although each individual is different, that is the topic, individual differences. But at certain level, people share the same concerns, issues, and the goals at certain level, at the fundamental level. So for that, that particular person becomes their voice, because not everyone is speaking. I am speaking on behalf of this group of people. That's why I become the leader. You can become the leader of 4, 5, 10, or 1,000 and crores of people. That is simply the difference in degree. But ultimately, what is the trait you required? Extra version. But leadership also requires meticulous planning, academic success, and everything, because you need to have a very good conceptual and comprehension ability, cognitive ability. That's what I said. Because in emotional intelligence, we have studied what? Emotional intelligence includes two terms, emotion and intelligence. Yes, you are going to recognize, understand, and manage the emotion of yourself and others. But how will you do that? With the help of the cognitive abilities. So that is the subset, right? Next is the agreeableness. Agreeableness, that yes, I am really sorry to you. I will cooperate with you. Right? A trust building section part is there of the personality. Compassionate. But if you are not agreeable to someone else's success, someone else's growth, agreeable means if someone else around you is growing, right, getting success, earning more, achieving their goals, are you with them or are you competing with them? कि अरे इसको कैसे मिल गई सक्सेस, ये तो पढ़ता ही नहीं था, right? So then you are here what? You are becoming skeptical, competitive, as well as sometimes blunt. कि तेरा कैसे हो गया? Suppose someone is scoring, getting a rank in MPPSC और आप उसको जाके बोल रहे हो यार तेरा तो नहीं होना चाहिए. You are being blunt. Clear? Right? So this is not right. So when you are low on agreeableness, you don't agree with the result. Why? How he can score the rank, secure the rank? How he can become the deputy collector? But you must be cooperative, trusting, and not competitive if you want to be showing the positive trait of agreeableness. बात समझ में आ रही है? So relationship quality, conflict resolution, diplomacy, all these are dependent on this, because you need to create which kind of situation, which I have avoided, you asked you to avoid the term win-win. Basically I have used the term symbiotic relationship. कैसी relationship बताई मैंने? Symbiotic relationship. In the society, if you have the symbiotic relationship, that see, here we are sitting a group of people, 4, 5, 6, 10. We all want our betterment. That is true, and we all agree to that. It is not the case that कि मैं सिर्फ अपना भला चाह रहा हूं, आपका नहीं चाह रहा हूं. हम सब यहाँ बैठे, हम सब अपनी भलाई चाहते हैं, अपना बेटरमेंट चाहते हैं. So let's first accept this point. Let's first agree on this point. And now let's find the solution. Someone's betterment in some field because of some resource crunch can be someone else's loss. That is what is the law of nature. If you have the limited resources and so many contenders to claim for that, then someone's success will be someone else's loss. That is the whole philosophy. But यहाँ पे हम conflict resolution इस तरह से करेंगे कि सबका थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए, benefit हो जाए, उनके goals achieve हो जाए. That is very very important, because we always have the scarce or limited resources in the society. That is what is called as conflict resolution. In the diplomacy also, we create the very symbiotic relationship. Suppose we are doing any kind of trade with any country, that must be beneficial for both. Then only the trade will occur. Yes or no? So diplomacy is always about give and take. It's not about taking only or giving only. It can't be. Because we all are working globally on the mutual benefit. यहाँ पे जो next term आता है agreeableness में, यहाँ पे लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, mutual benefit. This is very very important. Mutual benefit. Clear? Right? So all the online students जो सब सुन रहे हैं, ध्यान देंगे the kind of terms I am using, how I am explaining the things, just to make you clear what we are exactly trying to understand. Traits.
big 5 traits. So what are the different traits? We have arrived at the 4th trait, that is agreeableness, and the last trait is the neuroticism. And neuroticism is a kind in itself is a negative trait. When you say someone he is a neurotic person, means he is very impulsive, unstable. He takes very impulsive, instinctive, and emotional decision. He doesn't think, he just reacts. He is very reactive. So when he is reactive, he is moody, emotionally unstable. That's what you use terms to define that kind of person. So when I started the topic of individual differences, I told you that now we are defining the personalities. Now we are not entering deep down under their aptitude, under their attitude, under their IQ, under their beliefs, under their stereotypes, prejudice, discrimination. इससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं. I'm just judging you on whatever traits you are showing in the society. In the society, how you are behaving with the group of people in the society, how you are creating the influence. Are you reserved? Are you extrovert? Are you introvert? Are you agreeable? Are you not agreeable? Suppose a person is introvert, but he may be agreeable. That's why these individual traits are mutually exclusive. That's what I'm saying. You can be a person of well planning, organizing, punctual, but you may not be agreeable because you are highly competitive. You may be highly competitive. तो अगर किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को हम ब्रेक डाउन करें तो ये 5 ट्रेट्स के बेस पे हम उसको बात कर सकते हैं. यही बोलेंगे कि भाई प्लान्ड है, पंक्चुअल है, या फिर लेट बैक एटीट्यूड है, प्रोक्रेस्टिनेटर है. व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? ओपननेस. वेयर ही इज ओपननेस में क्या क्या लिखा आपने? हाँ, एडवेंचरस है, न्यू एक्सपीरियंस को वेलकम करता है, अडेप्टेबल है कि नहीं. थर्ड में हमने क्या पढ़ा? एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, शेयर करना अच्छा लगता है या फिर सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. ऐसे लोग आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड ऑल दैट. ठीक है. फिर एग्रीएबलनेस का क्या हो गया? एग्रीएबलनेस मींस आपके अंदर जेलसी नहीं है, अवॉइडेंस ऑफ जेलसी. यू कंसीडर द होल वासुदेव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेना, वासुदेव कुटुंबकम मींस यू कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली. So that is the context in which we need to understand these traits. So reading the traits is a very simple thing, but understanding them is a very tough thing. So when we say the concept of Vasudev Kutumbakam, we are talking about which personality trait? Agreeableness. Someone else's success, if you are feeling good in someone else's success, you are more agreeable and you are less competitive. That's why we say the term healthy competition. कैसा टर्म हम यूज करते हैं? हेल्दी कंपटीशन. देखिए यहां पे कॉम्पिटिटिव को हमने लो एग्रीएबलनेस में रखा है, बट इन द कॉमन पार्लेंस, सपोज यू आर आल्सो अपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? हेल्दी कंपटीशन अग्री कर रहा है. बट यस, आई एम हैप्पी फॉर योर सक्सेस बिकॉज आई अग्री दैट यू हैव वर्कड हार्ड. राइट? जैसे हम कभी भी सोचें कि कोई इंडिविजुअल को हम घूमते फिरते देखते थे, हमेशा मार्केट में देखते थे, लोगों से बात करते देखते थे, लाइब्रेरी में भी सीरियस नहीं था, उसकी रैंक कैसे आ गई? You are not agreeing to his hard work, but he has the skill, he has the knowledge, and that's why he has performed in the exam, right? So you must agree. तब तो आपको और ज्यादा अमेज होना चाहिए कि even though he spent his time into different things, different activities in the whole day, still he has performed in such a good manner and secured a rank. That means he has such a very good ability of maybe recalling, memorizing, or some good handwriting or good answer writing skill. So that's a matter of learning something from him, not getting jealous from him or envy from him. Last point is neuroticism. This is related to, even though whatever you feel, you must act according to the situation based on reason, rationality. You cannot just react based on your mood, because when your reactions are based on your mood, your emotions, then it will be very dynamic and unpredictable, or which may not match with the ethical code of the environment where you are sitting in a particular setup. आप ऑफिस में हैं, आप फैमिली गैदरिंग में हैं,
आप किसी भी सेटअप में चले जाएं, अल्टीमेटली आपको इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, आप न्यूरोटिक हैं, न्यूरोटिसिज्म वाला ट्रेट आपका हाई है, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो यहां पे लिख लेना लो ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही हमने क्या लिखी थी? रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज, RUM। फिर हमने मेयर एंड सैलोवे की जो डेफिनेशन लिखी उसमें भी हमने बोला टू मॉनिटर आवर इमोशंस, right? So neuroticism means I am not able to monitor my emotions, that's why I am low on IQ. So high neuroticism means low EI. High neuroticism means low EI. Is it clear? So there are these three tools. Sometimes the measurement tools are asked in the examination. लिखिएगा NEO-PIR, that is Neo Personality Inventory Test, that is detailed clinical assessment about these personality traits होते हैं. Sometimes the questions comes in the 2 marker, mention some test फॉर पर्सनैलिटी ट्रेट्स या बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल. तो आप इनके नाम लिख सकते हैं. दैट इज गोल्डबर्ग एडजेक्टिव स्केल, बिग 5 इन्वेंट्री दैट इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स, एंड क्विक ट्रेट बेस्ड सेल्फ असेसमेंट. हो सकता है गोल्डबर्ग एडजेक्टिव स्केल आ जाए या BFI बिग 5 इन्वेंट्री आ जाए, तो भी समझ जाना. इट्स अ टेस्ट टू मेजर द ट्रेट्स, to assess the traits, and which can be used in the research and human resource management. बस इतना लिख देंगे, आपको 2 marks मिल जाएगा. Right? You can score good marks. Clear? Done. Application in governance civil services में आप देख लेंगे simple 2 marker answer. How the individual differences or any trait theory helps in एडमिनिस्ट्रेशन. ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए. क्लियर? राइट? ये आंसर तो आपके पास लिखा हुआ होना ही चाहिए. राइट? चलिए, तो सिविल सर्विसेज में हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, पॉलिसी डिजाइन, टेलरिंग प्रोग्राम्स टू पर्सनालिटी ड्रिवन सिटीजन बिहेवियर, emotional intelligence enhances ethical governance and empathy based decision making. So we have studied everything: empathy, compassion, sympathy, antipathy, apathy, tolerance, integrity, impartiality, non-partisanship. We have completed all the values in the previous bullet point, previous to previous. Although also we have completed all the Nolan committee values. What were the Nolan committee values? We have completed selflessness. After that, बोलिए, जल्दी बोलिए. इंटेग्रिटी, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, ओके, लीडरशिप. सीक्वेंस सही नहीं है आपका, बट टर्म सही है. अभी तो 4 हुए. हाँ, ओके, चेक करिए. ओपन द नोट्स, ओपन द नोट्स. नोलन कमिटी की 7 वैल्यूज तो पता होनी चाहिए आपको. रोहन बताइए. नंबर 1 सेल्फलेसनेस, नंबर 2 इंटीग्रिटी, नंबर 3 ऑब्जेक्टिविटी. वेरी गुड. नंबर 4 अकाउंटेबिलिटी मिस कर गए आप. अकाउंटेबिलिटी. आफ्टर दैट ओपननेस. ओपननेस यहां दिखा था. फर्स्ट रेट है ना ओशन मॉडल का, ओपननेस, इसलिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूं. उसके बाद नेक्स्ट ऑनेस्टी. 6 हो गए. और 7th क्या था? लीडरशिप. तो लीडरशिप किसमें अच्छी होगी? जिसमें एक्स्ट्रावर्जन और एग्रीएबलनेस ज्यादा होगी. एक्स्ट्रावर्जन बोल रहा है कि मैं अपने थॉट्स को क्लियरली बाहर रख रहा हूं. लेकिन सपोज आप एग्रीएबिलिटी में लो हैं और अपने थॉट्स बाहर रख रहे हैं, तब तो आपकी इमेज निगेटिव बन जाएगी. एग्रीएबलनेस प्लस एक्स्ट्रावर्जन इक्वल टू अ लीडर. ये फंडामेंटल है. अगर ये दोनों ट्रेट्स नहीं है तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है. कैन यू अंडरस्टैंड? एक्स्ट्रावर्जन बोल रहा है कि वाह, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सक्सेस मिल गई. ये मैंने एक्सप्रेस किया. दिस इज एक्स्ट्रावर्जन. एग्रीएबलनेस, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू दैट यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन. अब एक्स्ट्रावर्जन हाई, एग्रीएबलनेस लो. स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट
आई कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट दैट तुम सिलेक्ट हो गए. दिस इज लो ऑन एग्रीएबलनेस एंड हाई ऑन एक्सट्रावर्जन. तो ऐसे इंसान की बात सुन के आपको तो बुरा ही लगेगा. जो सक्सेस जिसको मिल गई, जिसकी रैंक, वो बोलेगा भाई तू ये नहीं बोलता तो अच्छा. अब मेरे माइंड में तुम्हारे लिए एक निगेटिव इमेज क्रिएट हो गई दैट यू आर जेलस ऑफ मी, आई कैन नॉट गेट अलोंग विथ यू नाउ. सो एग्रीएबलनेस प्लस एक्सट्रावर्जन इक्वल टू लीडरशिप क्वालिटी. बट यस, अगर उसमें आपने प्लानिंग एंड एकेडमिक सक्सेस एंड जो आपकी डिटेलिंग को पे ध्यान देना, पंक्चुअलिटी, ये सब जो सेकंड ट्रेट है वो भी ऐड कर देंगे तो फिर और बेटर लीडरशिप स्किल हो जाएगी. तो जो सेवंथ क्वालिटी नोलन कमिटी की सेवंथ वैल्यू आपने लिखी लीडरशिप इक्वल टू, वहां पे लिख लेना लीडरशिप इक्वल टू एक्स्ट्रावर्जन प्लस एग्रीएबलनेस. एक्स्ट्रावर्जन प्लस एग्रीएबलनेस. Dictatorship is imposing your policies on someone without their point of views, right? That is dictatorship, right? Extraversion is simply saying or explaining what you feel inside. And always verbose, एक word होता है verbose, verbose about your thoughts. They keep speaking their mind without the fear of being judgmental. बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे आपको फ्रेंड्स भी मिले होंगे कभी लाइफ में, हो सकता है आप लोग में से कोई खुद हो इस तरह का. Females are very extrovert. In the family they may be silent, but with friends they are very extrovert, very clear in speaking their mind. Some boys are also like that. It is not gender specific trait, it is not very discriminating trait between the genders, but yes, we can find them. और culture to culture और context to context भी change हो जाता है. Western countries और Eastern countries में बहुत difference हो जाता है, right? But the important point is leadership equals to extraversion plus agreeableness. But ये आपको नॉलन कमिटी के आंसर में नहीं लिखना है. मैं आपको ट्रेट थ्योरी एक्सप्लेन किया इसीलिए ताकि आप यहां लीडरशिप को समझें. लीडरशिप वर्ड आपने यहां देखा, वहां नोलन कमिटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस वैल्यू रोल प्ले कर रहा था, वैल्यू प्ले कर रहा था. यहां पे लीडरशिप कॉम्बिनेशन बन गई टू ट्रेट्स की, स्पेशली टू ट्रेट्स की, एक्सट्रावर्जन और एग्रीएबलनेस. सो दीज टू ट्रेट्स आर वेरी हाई ऑन मोदी जी, राइट? दैट्स व्हाई इज अ गुड लीडर. व्हेन ही टॉक्स अबाउट व्हाट, भाइयों और बहनों, the first word he says, he collects, he makes you his family. That is the trait of agreeableness. That is the trait of agreeableness. And he is very good in speaking in his minds or his emotions or whatever his thoughts are. That's why he is very high on extraversion. That's why he is very high on extraversion. बात समझ में आई? So these are the things you can basically connect with the real life examples. So big five personality model we have completed. Selfness as integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, leadership. Right. ऑनलाइन में किसी ने आई थिंक शॉर्टकट भी बनाया है, SIOAOHL. ओके, वेरी गुड. चलिए, तो सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप. वेरी गुड. चलिए, याद रखें, जैसे आपको याद होता है वैसे याद रखें. These are the measuring tools of traits. रूबी आप पूछ रही हैं कि ये सर किस तरह के ट्रेड्स क्या टेस्ट करता है. तो ये जो टेस्ट आपने लिखे थे ऊपर, वो ट्रेड्स की स्केल मेजर करता है. यू आर हाई ऑन दैट ट्रेड और लो ऑन दैट ट्रेड, और ओवरऑल एक टेस्ट का रिजल्ट आएगा कि आप किस तरह. जैसे बहुत से लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट हर कोई लीडर नहीं बन पाता. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. हर कोई क्या नहीं बन पाता? लीडर नहीं बन पाता. वाई? अभी तो बताया वाई. उनमें पहली बात तो जेलेसी होती है, एग्रीएबलनेस नहीं होती. और दूसरी बात, आप सबके लिए भला सोचते हैं, लेकिन भला सोच रहे हैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी आप अच्छे लीडर नहीं बन पाते. टीम लीडर ही नहीं बन पाते तो ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर कैसे जाएंगे? यस और नो? ये दो ट्रेट आप में सबसे पहले ट्रेट है. आप कल को डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस लीड कर रहे हैं, लोगों को लीड कर रहे हैं. मैं कहता हूं 5 लोगों को ही अगर आप लीड कर रहे हैं तो आप में ये ट्रेट्स हाई होने चाहिए.
हम तो ऑफिसर हैं जी, हम बॉस हैं, व्हाई शुड आई से द अथॉरिटी आई हैव, द पावर आई हैव इन इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ? ऐसा नहीं होता। बहुत लोग आते हैं उस पोस्ट में, बहुत लोग चले जाते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन को सही तरह से चलाना या डिलीवर करना, उसकी एफिशिएंसी हाई रखना, टीम बिल्डिंग पे काम करना सबके बस की बात नहीं है। So even though this exam puts you in a very responsible position of leadership, that doesn't mean your leadership skills are high, but you can groom it. Swami Vivekananda said in his text that leadership is innate. What does it mean? Leadership qualities are innate. What does it mean? बाय बर्थ होती है लीडरशिप क्वालिटीज। लीडर्स बनते नहीं हैं, लीडर्स पैदा होते हैं, लीडर्स आर बॉर्न। लेकिन अगर ही इज करेक्ट, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ यही मानेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? वी नीड टू क्रिएट लीडर्स, we need to create leaders, we need to spot talents, we need to pass the personalities through the traits, because we need leaders जो सही डायरेक्शन में चीजों को ले जा सके। Otherwise, with limited number of leaders and leaders who are born, if we keep searching for them, how will the country, economy, society will run? So we need leadership qualities. We can nurture it. We can nurture it. And there comes the role of the philosophy. किसका रोल आता है वहां पे? Philosophy. With knowledge, you can change the complete orientation of mind of any individual. With knowledge, with philosophy, with ideologies. And that's where the rationality, that's where the philosophy comes into play. So we can create leaders with a particular training from early age, right? Chali. So let's move on towards the next indicator theory, that is Myers-Briggs type indicator, MBTI. What does it say? Write down the first thing. This MBTI is a psychometric tool designed. This MBTI is a psychometric tool designed to identify. It's a psychometric tool designed to identify an individual's personality type, preferences, and behavioral tendencies. So you have seen right now we are more focusing on personality types. We are more focusing on personality types. ध्यान रखना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते समय हम पर्सनैलिटी टाइप्स पर फोकस कर रहे हैं। मैंने बार बार इस बात को आपको बोला है कि अब भूल जाइए फर्स्ट 3 बुलेट पॉइंट्स। नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द फोर्थ बुलेट पॉइंट। we don't interact with people much at the personal level, in organization, in administration, in social gathering. We always interact with people for limited period of time and for a specific purpose. We don't have time to identify your whole 20-25 years of history, your attitude, what was the role of family in your upbringing, what was the role of your cultural upbringing or cultural norms in your upbringing. वो सब का हमारे पास टाइम नहीं है. We just have so many applications in the organization. Suppose you are in a private organization, you have so many CVs in front of you. You just need to shortlist based on your skills and abilities. Then you will go towards the GD round, interview round, technical round, and finally you need to filter out the appropriate person for this role. And there comes the role of these personality types, the knowledge of the personality type. Simple, right? अब जैसे अगर मैं इसका आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही है, वर्णा सिस्टम. Varna system is the historical application of these individual differences, understanding the personality types. But it got rigid over the period of time. It got watertight with the period of passage of time, and that's why it converted into a rigid caste system. But the Varna system started with what? With the type of employment, type of activity you want to engage yourself with. If your personality type is bold, courageous, and you are physically strong also, then you will go for the Kshatriya clan, a Kshatriya Varna, the second Varna, the warrior Varna.
If you are more interested in intellectual gymnastics, rationality, finding out the reasons, the causes, right, then you will go for the Brahmin, the top level, more interested about the ideas and knowledge. If you are more interested regarding the business, trade, creating new products, selling the services, then you are more suitable for the Vaishya Varna, the third Varna, right? So there are different orientations of different personalities. A person who is high on neuroticism cannot be placed in the position of decision making. He can never be. Yes or no? Yes. So that is the whole application. तो इतनी पढ़ाई करने के बाद हमें एक बात समझ में आती है दैट इंडिविजुअल इज वेरी डीप. एक इंडिविजुअल जो है वो एक ओशन की तरह, एक समंदर की तरह है, बहुत गहरा होता है. एंड अगर हम एक फिलॉसफी में जाएं तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि आपके अंदर के जो भी ट्रेट्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, वो जेनेटिक हैं, लेकिन फिलॉसफी कहती है वो मल्टीपल बर्थ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दोज हैबिट्स, right? So many instincts are carried forward from your previous births. So that's why we know that your whole personality is very, very deep. Your whole consciousness is very, very deep. But for the practical purpose, we need to rely on this trait theory, MBTI theory, and all that. Right? Chali. So that is very practical solution we have arrived at. So syllabus provides you an opportunity to get the insight on these topics. So Myers-Briggs Type Indicator is a psychometric tool designed to identify an individual's personality types, preferences, and the behavioral tendencies. It is developed by Briggs, Myers, and Catherine Cook Briggs, based on Carl Jung's theory of psychological types. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रेट थ्योरी और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी डेवलप्ड बाय कार्ल जंग, तो वहां पे भी आप इसी को मेंशन कर दीजिए, क्योंकि मेयर एंड ब्रिग ने जो थ्योरी डेवलप की है वो कार्ल जंग के साइकोलॉजिकल टाइप्स पे डेवलप की. There are 16 distinct personality types according to Carl Jung, Briggs and Myers. Clear? There are 16 personality types, but the four major dichotomies which are classified are introvert, extrovert, sensing, intuitive, thinking, feeling, judging, perceiving. The first one says that focus inward versus focus outward. अगर हम अभी ट्रेड थ्योरी से कंपेयर करें तो एक्सट्रोवर्जन वाला पॉइंट है. यस और नो? यस और नो? यस. If we are talking about the sensing and intuitive, one is detail oriented and another is the abstract thinker. तो abstract thinker सबसे पहला वाला बंदा था जो क्रिएटिव था, openness. And the second category of conscientiousness, उसमें क्या था? Detailing, planning, strategic thinking, punctuality. So that is more detail oriented. Yes or no? Yes. Next is thinking versus feeling, then logic versus emotion in decision making. In decision making. So emotional decision making कर रहे हैं तो you are high on neuroticism. Yes or no? Yes. If you are low on neuroticism, your EI will be high and you will be reacting by after managing your emotion in a logical manner. So logic versus emotion in decision making. There is a question we have solved in attitude versus aptitude topic, that attitude without aptitude is lame and aptitude without attitude is blind. We have solved this question in the class also. You understand that? You remember or not? ये क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया है. क्या क्वेश्चन था? एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड. मैंने इस बार सीक्वेंस चेंज कर दिया. एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड बट एंड एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड इज लेम. अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है तो आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे. सिर्फ बोल सकते हैं आई वांट टू डू इट बट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. दैट्स व्हाई यू विल बी लेम.
और आपके पास एबिलिटी है लेकिन एटीट्यूड नहीं है, तो दिशा नहीं होगी, कहाँ जाना है। जा तो सकते हैं लेकिन जाना कहाँ है यही नहीं पता, इसलिए बैठे हुए हैं अंधे की तरह, ब्लाइंड की तरह। तो ये जो आपकी थ्योरी थी ना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की, सेम थ्योरी इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू में भी लगती है। अगर आपके पास सिर्फ इमोशंस हैं तो आप इमोशन से इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग कर लेंगे जो गलत हो जाएगी, जो सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं रहेगी। और अगर आप सिर्फ आईक्यू रखेंगे, सिर्फ लॉजिक रखेंगे, तो आप एथिकल डिसीजन मेकिंग मिस कर जाएंगे, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो यही सेम सेंटेंस अगले बार एग्जाम में आ सकता है। बात समझ में आ रही है? और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, राइट? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन अभी तो सॉल्व किया हमने, जस्ट 2-3 क्लासेस बैक। तो बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, the kind of correlation, the kind of answers you need to write, the way you need to think. Don't treat it as some new terms. You have already known these terms for last 20-30 classes. जब से हमने टॉपिक शुरू किया तब से आपको ये टर्म्स समझ में आ रहे हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। बट वी आर पुटिंग दीज डाउन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फैशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एंड थ्योरिस्ट. So the first dichotomy is the introvert extrovert, second dichotomy is the sensing and intuitive, third dichotomy is the thinking and feeling dichotomy, and the fourth is the judging and perceiving dichotomy, which is preference for structure versus in spontaneity. I perceived, I acted. I judged means in a proper organized fashion. जैसे a judge, when a judge of the Supreme Court, a High Court functions, it functions according to what? The Constitution. According to the laws he will think. He will not react based on the perception कि भाई जज को जो लग रहा है जज उस हिसाब से डिसीजन सुना देगा, ऐसा नहीं होता है। जज की अपनी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। जज तो किसका, आपने जॉली एलएलबी देखी है, उसमें जो जज साहब होते हैं वो यही बोलते रहते हैं कि मैं तो यहाँ बैठ के बस वेट ही करता रहता हूँ कि कब एविडेंस आए, कब केस सही डायरेक्शन में जाए, कब सही पर्सन जो है जो कन्विक्ट, उसको मैं कन्विक्टेड डिक्लेयर करूं जो क्रिमिनल है। लेकिन ना एविडेंस आ पाते हैं, ना केस आगे बढ़ पाता है सही डायरेक्शन। और मैं पर्सनली सब जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज माई हैंड्स आर टाइड, हाथ बंधे हैं मेरे, based on the constitutional values, based on the laws. And this is the meaning of judging versus perceiving, the preference for structure, that is the constitution. And that's what you need to do also while when you are sitting on the responsible post. आपको पर्सनली क्या लगता है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपको दो चीजों पे एक्ट करना है। पहली, आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है। तो एथिकल मींस बेस्ड ऑन द रूल्स, कोड्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपके एथिकल कोड है उसके बेसिस पे ही आप एक्ट कर सकते हैं। तो पर्सनल इमोशंस की वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, आपको ऑब्जेक्टिवली डील करना है, considering the ground reality, the evidences, the facts, the data which you collect from the ground level. तो आपकी डिसीजन मेकिंग एथिकल हो जाएगी, एम्पैथेटिक भी हो जाएगी और साथ ही साथ लॉजिकल भी हो जाएगी। तो यू नीड टू मेंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द फीलिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट योर फीलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। द फीलिंग ऑफ सेल्फलेसनेस, the feeling of welfare of the citizens, the feeling of the directive principles of state policy, the feeling of the fundamental duties. That feeling I am talking about. Clear? So the four MBTI dichotomies lead to different types of personality types. You just note down this table in your copy. There are 16 personality types based on the four dichotomies. Yes or no? Right? So you just write down quickly as a piece of information in your notes. So these are very, very important. Carl Jung is the main psychologist who developed the 16 personality types, and it was later very much codified in a perfect way by the Mayer and Briggs.
Is it done? चलिए. So that decision making, thinking versus feeling, logical and objectivity versus values and empathy. So there are 16 types, personality types, which were developed by the Carl Jung and Myers and Briggs, that is mentioned here, which is the combination of those four dichotomies, which is the combination of those four dichotomies. Clear? Can we move ahead? Chaliye. दिस टेबल यू डोंट नीड टू, ये वाला पार्ट कर लिया कि नहीं कर लिया आपने? ये उसी के आगे की चीज है. डिस्क्रिप्शन ऑन द सेम थिंग विच यू हैव रिटन डाउन हियर, इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है. अब मैं आपको दे रहा हूं पर्सनैलिटी टाइप्स, बट यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन. You just need to understand what has been given by the Carl Jung and Meyer and Briggs. So ISTJ, can you locate what is the meaning of ISTJ from your notes? What is this? What does I stands for? Okay, what does S stands for? Sensing. Next, what is T stands for? Thinking. And what is J stands for? Judging. अगर ये चारों टाइप्स हम मिक्स करते हैं तो वो किस तरह के जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है? लॉजिस्टिशियन, लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, डिटेल्ड ओरिएंटेड, वैल्यू ट्रेडिशन को कैरी करने वाला. नेक्स्ट, ISFJ. What is the what is the meaning of ISFJ? I means introvert, then sensing, feeling, judging. Then he is a good defender. So that's how, why the combination of one category from the four dichotomies and creating those combinations to derive and understand that person is a logistician, defender, or advocate, or architect, or adventurer, or mediator, or logician, or entrepreneur, or entertainer, or campaigner, debater, executive, counsel, protagonist, or the commander. तो ये इतने सारे रोल्स हैं. जैसे हमने अभी जस्ट क्या डिस्कस किया कि फोर वर्णास आर देयर, बट फोर वर्णा कहना तो बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया, राइट? अम्ब्रेला टर्म हो गया. विद इन द वर्णा सिस्टम्स वी हैव डिफरेंट रोल्स एंड जॉब्स. यस और नो? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. And for that employment, if you conduct a personality trait test, then इस इन चारों के कॉम्बिनेशन से अगर कुछ निकल के आता है तो you can suggest that particular person can become an adventurer or an architect or an entrepreneur. Entrepreneur के लिए ESTP जा रहा है. What does it mean? देखिए, what is the meaning of ESTP? Perceiving. This is again very very important. Why perceiving डाला हमने यहाँ पे, judging क्यों नहीं डाला? क्योंकि entrepreneurs need to think beyond what is traditionally written. बात समझ में आई? अगर हम सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम बियॉन्ड द प्रेजेंट नहीं देख सकते, राइट? क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर कोई काम करता है तो वो कुछ रिवॉल्यूशनरी काम कर सकता है, वो मार्केट पूरा चेंज ही कर सकता है. जैसे नॉर्मल सी बात है, ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या किया? पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया. Yes or no? So that is the meaning of perceiving. Can you perceive the future? इसीलिए ये पैरामीटर्स डाले गए. ऑल्दो एग्जाम में इतना डिटेल नहीं आएगा आपको. This knowledge I am just giving you to understand why this MBTI theory is important. क्या है पूरा फुल फॉर्म? What is the full form? Myers-Briggs टाइप इंडिकेटर. तो बस आज आपको ये पता चल गया कि वी हैव व्हाट, हाउ मेनी डाइकोटोमीज आर देयर, कितनी कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरी बन रही हैं? हाँ, 16 कैटेगरी नहीं, टोटल 4 कैटेगरीज हैं. 4 कैटेगरीज के अंदर डाइकोटोमी है तो टोटल 8 पॉइंट्स हो गए. अब उन 8 फैक्टर्स को हर कैटेगरी से एक एक पिक करके
2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 परम्यूटेशन किया है स्कूल में? 11th में आता है क्या पीएनसी, या 10th में भी होता है? 11th में आता है शायद, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो फ्रॉम द 4 कैटेगरीज इफ यू आर पिकिंग वन कैटेगरी, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? ऑनलाइन वाले बच्चे हो सकता है कुछ समझ रहा हो. 2C1 यानी इन दोनों में से एक 2C1 देन 2C1 एंड 2C1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16. That's why we have how many personality types? 16 personality types. That's how the calculation goes. Chaliye, let's move on to our very important topic called as the psychodynamic theory by Sigmund Freud. मेरा ESTJ आ रहा है सर. ESTJ आपने कैसे कर लिया पर्सनालिटी टेस्ट इतनी जल्दी? Done. Chaliye. So let's start with a very revolutionary theory by Sigmund Freud. बहुत लोगों ने इनका नाम सुना है. He is very well known in the field of psychology because उसका रीजन ये है, among the youth he is very popular. The reason being his complete theory is based on psychosexual development. किस पे based है? Psychosexual development, right? Your complete life is guided by how, in which sex you are born. You are male or you are a female. And when you are born as a boy or a girl in a family, what kind of sexual setup it is? Means you have mother and father both, or you have just a simple single mother is there, or you have only father. Just after your birth your mother died, just what happened with the Buddha also, right? Or maybe you have a grandparents in your home also. Then the important category that once you are born, what kind of environment, like friendly loving environment is there between the parents, between the husband, your father and mother, right? They have very cordial environment, the cordial relationship. How you perceive the first child and the second child. So there is always a competition of deriving and getting love in a kid, getting nourishment in a kid, in a child. उसे हमेशा ये लगता है जब कोई बच्चा पैदा होता है कि सारा अटेंशन किसको मिले? मुझे मिले. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब भी उसे ऐसा नहीं मिलता तो वो कंपटीशन फील करना शुरू करता है कि जो अटेंशन मुझे मिलना चाहिए था वो कौन ले गया. मेरी माँ से जो मुझे प्यार मिलना चाहिए था वो मेरे पापा ले गए, राइट? या जो मुझे फादर से मिलना चाहिए था, एक डॉटर को लगता है कि फादर अपोजिट सेक्स होने के कारण काफी अट्रैक्शन होता है एक फादर और डॉटर में. लेकिन अगर फादर उसका टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपनी वाइफ जो उसकी ड्यूटी भी है, तो डॉटर को जेलसी होती है मदर से. कुछ इस तरह की बातें सिगमंड फ्रॉइड को फेमस बनाती हैं. बट सिगमंड फ्रॉइड की पूरी थ्योरी समझना बहुत जरूरी है. ही इज नॉट टॉकिंग सिंपली अबाउट psychosexual development. Yes, there are stages up to the age of 20-22 that you are growing till you are a teenage and then you develop your rational mind completely. But जब तक आपका rational mind completely develop नहीं होता है, तब तक आप कैसे grow करते हैं, कैसे behave करते हैं, कैसे perceive करते हैं world को या अपने experiences को, ये आपकी आने वाली जिंदगी को define करता है. So in the layman terms, I have just tried to explain the whole concept behind Sigmund Freud. And he is one of the finest psychologists in the history of psychology who categorizes the personality types. But before that, he talks about three important terms, and those three important terms are called as id,
ego and super ego. So someone who has learnt about the Sakya philosophy in my class may remember that Sakya says the world, the universe is made up of two important components. What are those? What are those? बिल्कुल सही बात है, your पुरुष and prakriti. And how this world manifests when the prakriti destabilizes and converts or manifests itself into फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है भाई? किसी ने अगर सांख्य फिलॉसफी पढ़ी है तो आपको याद होगा, है इस कॉपी में है या दूसरी कॉपी में? दूसरी कॉपी में, बट रिवीजन तो चल नहीं रहा है, तो कहां से याद होगी? इतनी बड़ी टेबल बनवाई थी। तो प्रकृति से क्या निकलता है सबसे पहले? महत। प्रकृति से क्या निकलता है? महत, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से क्या निकलता है? इंटेलिजेंस से क्या निकलता है? ईगो, अहंकार। नहीं याद आ रहा? एकदम नहीं याद आ रहा। ईगो अहंकार से दो तरह के तत्व निकलते हैं। पहला तत्व होता है तमस और दूसरा तत्व होता है सत्व। दो ऐसे एरो निकले थे। फिर जब आप तमस से सत्व की तरफ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं रजस। क्या बोलते हैं उसको? रजस। यू रिमेंबर? कोई बात, रिवीजन करो भाई, इसलिए बोल रहा हूं। आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी में सब लिखा है, मेरे पास अब कोई काम ही नहीं बचा, नोट्स कंप्लीट है, तो आगे क्या करना है? जैसे ही ऐसे फील आए कि मेरे पास अब काम नहीं बचा, नोट्स कंप्लीट है, तो क्या करना है अगला काम? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। फिर अगली क्लास में मैं आपको 30-40 क्लास पुराना कुछ बात बोल देता हूं ऐसे, तो फिर आप लोग ब्लैंक हो जाते हो, बट अंदर ही अंदर खुश भी रहते हो, लिखा तो हुआ है, याद भले ही ना हो, है मेरे पास। दैट फीलिंग ऑफ सफिशिएंसी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, कि मेरे पास है। यू नीड टू यूज योर वेपन। सिर्फ हथियार रखने से कुछ नहीं होगा, उसे यूज भी तो करना है सही समय पे। इसलिए डेली उसकी धार बनाते रहो, कभी भी काम आ सकता है आपके नोट्स। सो आज हम जिस ईगो की बात कर रहे हैं ये वही अहंकार ईगो है। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी में ईगो को कैसे डिफाइन किया गया है? रियलिटी ओरिएंटेड रेगुलेटर। किस तरह से डिफाइन किया गया है? रियलिटी ओरिएंटेड रेगुलेटर। ये उस ईगो, उस अहंकार से अलग है, क्योंकि वो फिलॉसफी का अहंकार था, आज साइकोलॉजी का ईगो चल रहा है। आज सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से जो ईगो वर्ड है वो क्या है? वो एक रियलिटी में एडजस्ट करने वाला रेगुलेटर है। एटीट्यूड में वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस, यस और नो? यस, we have learnt about the different functions of attitude, and one of them was the social identity, social adjustment, social एडजस्टमेंट। फंक्शन था कि नहीं था? वो तो इसी कॉपी में होगा भाई, खोलो, जस्ट ओपन। अगर आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, इफ यू फाइंड रिवाइजिंग प्रोसेस एज बोरिंग, ये हो सकता है, इसलिए आपको बार बार उन्हीं पन्नों को पलटने का मन नहीं करता। आप ही ने लिखा है, आप ही की हैंडराइटिंग, कितनी देर देख लोगे भाई? सीधी सी बात है, आप कितने भी अच्छे तैयार हो जाओ, शीशे में खुद को कितनी देर देख लोगे? थोड़ी देर बाद लगने लगेगा बस कर भाई, यहां से चलते हैं। हार्डली आप दिन भर में अपने आप को मिरर में कितनी देर देखते होगे? 2 मिनट भी नहीं, 120 सेकंड भी बहुत होता है। बस नहाए धोए, कंघी की, 30 सेकंड नहीं लगता, हाँ रेडी, ठीक दिख रहा हूं, फिर दिन भर नहीं देखते। तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपने ही किए हुए काम को नहीं देखना चाहता। ये मैं एक साइकोलॉजिकल आपको फैक्ट बता रहा हूं। वो अपना क्रिएशन करना चाहता है, तो नोट मेकिंग में इंटरेस्ट आता है, लेकिन रिवाइजिंग में इंटरेस्ट नहीं आता। आपने बहुत से एक्टर्स का इंटरव्यू देखा होगा, वो बोलते हैं कि मैं अपनी मूवी खुद नहीं देखता। ये आपने 100% सुना होगा, किसी रील में, किसी इंटरव्यू में, कभी कपिल शर्मा शो में। क्यों? ह्यूमंस क्रिएट तो करना चाहते हैं,
लेकिन अपना काम जो उसने क्रिएट किए हैं वो अट्रैक्ट नहीं करता उसको, क्योंकि वो उसी का क्रिएशन है। अगर कोई दूसरी उसकी तारीफ करे तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए वो इट्स ठीक है, मेरा ही क्रिएशन है, ठीक है, सो व्हाट। और इसी कारण से आपको भी रिवीजन करने का कभी कभी मन नहीं कर, कभी कभी क्या, मोस्टली, हाँ यार अच्छे नोट्स तो बना लिए हैं, अब पढ़ने का क्यों नहीं मन कर रहा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए नोट्स को नोट्स की तरह रिवाइज मत करो, नोट्स को हमेशा क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करो। PYQ की बुक खोल के बैठो, या जो क्वेश्चंस मैं क्लास में लिखवाता हूं उन्हें पढ़ो कि ये क्वेश्चन मुझसे आंसर होगा कि नहीं, मैं इसमें क्या लिखूंगा, ये क्वेश्चन मुझसे आंसर होगा कि नहीं, मैं उसमें क्या लिखूंगा। रिवाइज होल नोट्स थ्रू क्वेश्चंस, नॉट थ्रू नोट्स। क्योंकि जब आप क्वेश्चन के थ्रू नोट्स रिवाइज करते हैं तो वो आपको एक चैलेंज देता है, और फिर आपका ईगो बूस्ट होता है कि मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा, तो फिर आपको इंटरेस्ट आता है। और इसीलिए आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स भी बना लेंगे जो मैं बनवाता हूं, तो भी आप रिवाइज कर नहीं पाते हैं, मन ही नहीं करता। तो प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस एंड ट्राई टू रिवाइज द कंटेंट थ्रू क्वेश्चंस, नॉट थ्रू नोट्स। मैं आपको बोल रहा था, क्या बता रहा था, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, नॉट एप्टीट्यूड, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। काम चाट का पेनिनसुला में, हाँ जी हाँ जी आ गया है, एंड सुनामी हिट्स रशिया, बिल्कुल सही बात है, आज सुबह की न्यूज है। The ring of fire hits in the Pacific. चलिए बताइए क्या क्या फंक्शंस हैं एटीट्यूड के। सबसे पहला नॉलेज फंक्शन, नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 3 ईगो वैल्यू एक्सप्रेशन, वेरी गुड। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, सिगमंड फ्राइड भी बोलेंगे उसके बारे में। सोशल एक्सेप्टेंस, यूटिलिटेरियन, सोशल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट फंक्शन। तो अब यहाँ पे दो फंक्शंस आपने देख लिए, सोशल एक्सेप्टेंस एंड सोशल एडजस्टमेंट। दोनों के लिए ईगो रेगुलेटर का वर्क करता है। क्या वर्क करता है? रेगुलेटर। मैं अब यही समझा रहा हूं कि अंदर आपने जो एटीट्यूड के फंक्शंस पढ़े, इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? ईगो। ईगो ही डिफेंड भी कर रहा है, ईगो ही आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ईगो ही आपको सोसाइटी में एडजस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, ईगो ही सेल्फ एस्टीम के थ्रू आपको बूस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, ईगो ही आप में नॉलेज के थ्रू सेल्फ अवेयरनेस लाने की भी कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे 3 कंपोनेंट है एज मेंशन्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो होता ये है कि जब हम बैठ के बातें कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्शियस स्टेज। कौन सी स्टेज है? इस कॉन्शियस स्टेज के थोड़ा सा नीचे, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, कौन सी चीज है? प्री कॉन्शियस स्टेज। जैसे हम सो के उठे हैं, हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हम एकदम से पूरे कॉन्शियस नहीं हो जाते, हम डीप स्लीप में होते हैं, फिर नॉर्मल स्लीप में होते हैं, और फिर हमें कोई उठाता है कि हाँ उठो, तो बोलते हैं हाँ उठ रहा हूँ। Something like that we reply to our parents or to friends if we are in hostel, भाई अलार्म बंद कर, क्लास जाना है कि नहीं जाना है, उठ जा। अभी हम कौन सी स्टेज में है? फिर आप उठते हो, पानी पिया, फिर एक बार आप दोबारा घड़ी देखते हो। दो स्टेजेस में आप घड़ी देखते हो, एक बार आप अलार्म बंद करते हो, हाँ 8 बज गया यार, अलार्म बंद करो, ठीक है। फिर सपोज 5 मिनट आप और सो गए, 8 बजे आपको उठ के कहीं जाना ही था सपोज, फिर 5 मिनट बाद फिर आप उठे, हाँ पानी पिया, टाइम देखा 8:05, फिर आपको क्या चमका कि अरे मुझे तो 8 बजे निकलना था। तो देर आर 2 स्टेजेस ऑफ नोटिंग द टाइम, वन वॉज प्री कॉन्शियस, अनदर वॉज फाइनली यू आर बीइंग कॉन्शियस। तब आपको रियलाइज होता है कि मैंने अलार्म क्यों लगाई थी, मुझे कहां जाना था, अरे इफ आई एम गेटिंग लेट जस्ट रश टू द पॉइंट, रश टू द क्लास। तो 2 स्टेजेस में काम हो रहा है। तो पहली स्टेज है कॉन्शियस, जिसमें हमको, सॉरी लास्ट स्टेज है कॉन्शियस, जिसमें हम फाइनली आ जाते हैं, जिसमें अभी हम हैं। लेकिन इसके पहले वाली जो स्टेज होती है वो क्या होती है? प्री कॉन्शियस। और उसके नीचे जो स्टेज होती है जब हम नींद ले रहे होते हैं, वी आर इन डीप स्लीप, दैट इज कॉल्ड एज
अनकॉन्शियस। तब आपको कुछ नहीं पता रहता कि आपके रूम में कौन आया कौन गया। यू आर टोटली अनकॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग। कौन क्या बगल में बैठ के बातें कर रहा है, मैं सो रहा हूं। So first draw this diagram as you can see on the screen. So as you can see on the screen, you see that superego, id and ego both are below your conscious minds. And he has given one iceberg model to explain this. He has given what? The iceberg model. इसको हम क्या बोलते हैं? Iceberg model to explain it. जैसा कि आपने फ्यू मिनट्स बैक ये स्टेट किया था कि एक ह्यूमन बीइंग जो है बहुत डीप होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अगर हिंदू फिलॉसफी की बात करूं तो कई जन्मों के संस्कार आपके अंदर हैं जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी में आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर को शेप करते हैं। तो अगर मैं एनालॉजी ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड भी यही बोल रहे हैं कि जो टिप में दिख रहा है, दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो आप बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में, इसके पीछे जो काम करने वाले फैक्टर्स हैं वो बहुत डीप हैं। वो कैसे हैं? डीप हैं, बहुत ज्यादा डीप। और आपकी डे टू डे बिहेवियर, डे टू डे एक्टिविटीज को वो गाइड करते हैं, भले ही हमें समझ में ना आए। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल के कॉन्शियस बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस बिहेवियर के जो रीजंस हैं, कॉजेज हैं, रूट्स हैं, वो बहुत ज्यादा डीप। समटाइम्स इट इज कमिंग फ्रॉम द सुपर ईगो, समटाइम्स इट इज कमिंग फ्रॉम द इड। Suppose a beggar comes to your car at the red light traffic signal. Two questions will come in your mind. First question will come whether I should help this beggar or not, whether I should do charity or not. The answer will be yes. Should का आंसर क्या हो जाएगा? Yes. Next question, suppose your friend is sitting just beside you in the car or in the bike just behind you, and then he asks कि शुड वाली कहानी तो ठीक है, whether you are going to give some money to him or not. Then you will say, I don't have money because I get limited money from my parents on a monthly basis, so I'm not going to give it to someone because this is not my hard earned money, this is my parents money. The day I will earn, I will definitely do that. तो यहाँ पे आपने, आपके सुपर ईगो ने बोला कि yes charity should be done, और आपके इड ने बोला कि right now I can't do it, क्योंकि जो पैसे घर से आते हैं वो मेरे यूटिलिटी के लिए आते हैं। यस और नो? तो उसे कौन इस्तेमाल करेगा? मैं इस्तेमाल करूंगा। जब मैं कमाऊंगा तब मैं सोचूंगा कि मुझे कितनी चैरिटी करनी चाहिए और कितना मुझे डोनेशन करना चाहिए। तो दैट इज द सैक्रिफिशियल नॉलेज, द मॉरल नॉलेज, राइट? द मॉरल इंस्टिंक्ट्स। तो एक इंस्टिंक्ट था मॉरल कि आपको मदद करनी चाहिए कि नहीं, एम्पैथी होनी चाहिए कि नहीं, कंपैशन होना चाहिए कि नहीं। और दूसरा था आपके इंस्टिंक्चुअल या इंस्टिंक्टिव डिजायर्स और द प्लेजर प्रिंसिपल। सो यू नीड टू डिफाइन, राइट डाउन, लिख लिया आप लोगों ने पूरा, राइट? तो फर्स्ट थिंग क्या डिफाइन किया है सिगमंड फ्रॉइड ने? इंस्टिंक्ट, डिजायर्स और द प्लेजर प्रिंसिपल। ईगो क्या बोलता है? रियलिटी ओरिएंटेड रेगुलेटर विच इज लाइक मैनेजिंग बोथ इड एंड द सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या बोलता है? मॉरल कॉन्शियस एंड द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। बेसिकली सोसाइटी में मोरालिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप करोड़ों कमाएंगे तो लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन आपने उसमें से 1 लाख दान कर दिया तो लोग आपको वैल्यू करने लगेंगे। Yes or no? This is the truth. And that's why it is written here, moral conscience and societal standards. जब आप सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स हमेशा किसके हाई रहते हैं? गिविंग नेचर।
टेकिंग नेचर के स्टैंडर्ड्स कभी हाई नहीं होते। इंडिया में आप जितना भी कमा लो, यूथ अट्रैक्ट हो सकता है, यार इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना पैसा है, मुझे भी अमीर बनना है, यूथ अट्रैक्ट हो सकता है किसी रिच पर्सन से। लेकिन आफ्टर सर्टेन एज आप देखेंगे 40 प्लस के लोगों को, दे विल नॉट टॉक अबाउट द मनी, दे विल टॉक अबाउट द गिविंग नेचर। बात समझ में आई? राइट इसलिए हमारे टेक्स्ट में, पुराणों में और कहानियों में हमेशा क्या बोला गया है कि होल्डिंग नहीं करना है। पंचशील में क्या लिखा हुआ? नॉन होर्डिंग ना, अस्तेय और अपरिग्रह, मतलब नॉन स्टीलिंग एंड नॉन होर्डिंग। व्हाई इट इज रिटन नॉन होर्डिंग? मतलब आप करोड़ों कमा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोंट होर्ड इट, उसको जाने भी दो, उसकी आउटगोइंग बनाओ, उसमें को गिविंग नेचर में भी डालो, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द फैमिली, वॉट एवर इट इज, डोंट होल्ड इट। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? 2 मार्कर में हो सकता है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यहां लिख लेना 2 मार्कर अपनी कॉपी में। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। क्लियर? चलिए, there are multiple things, psychodynamic theory of Sigmund Freud mein there are multiple things mentioned by him. You just draw the flow chart today. I will explain all those things in the next class. Today's class time is over, so you just note down. He is mentioned about the structure of the personality, he is mentioned about the unconscious mind and overall psychosexual growth of any individual through these 5 stages, and the defense mechanism of human beings. आपने एक बात सुनी होगी कि काउंसलिंग सेशंस होते हैं साइकोलॉजी में। जब आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफ में, आप सैड हो जाते हैं, आप नार्सिसिस्ट हो जाते हैं, आप न्यूरोटिक हो जाते हैं, तो टॉक थेरेपी चलती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी डियर जिंदगी, हैव यू सीन? शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट, जिसका गाना बहुत फेमस हुआ था, लव यू जिंदगी। आई थिंक 5-6 साल पुरानी हो सकता है, 8 साल पुरानी हो। उस मूवी में भी यही दिखाया है कि एक काउंसलर और साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं वो, कौन? शाहरुख खान, और आलिया भट्ट उनके पास जाती है फॉर दोस सेशंस। टॉक थेरेपी, टॉक थेरेपी के जनक, फादर, फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी लोगों से बात कर करके बनाई। लोगों से जब डिस्कस किया तो पता चला उसे कि हर इंसान के अंदर एक ईगो नाम का रेगुलेटर होता है, जो उसके गिविंग नेचर और उसके प्लेजर प्रिंसिपल को हमेशा बैलेंस करता है। जैसे मुझे प्रसाद खाना पसंद है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि प्रसाद पूजा के बाद मिलेगा, तो पूजा के टाइम में धार्मिक हो जाऊंगा, सुपर ईगो शो करूंगा, और प्रसाद के टाइम प्लेजर गेन करने की कोशिश करूंगा, और अपना ईगो इन दोनों को बैलेंस करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पूजा में प्रसाद के लिए ही जाते हैं, कई बार आपको पूजा में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन यू पोर्ट्रे कि हाँ अंकल जी बस कुर्ता पजामा पहन के आया हूं, बस पूजा में मेरा इंटरेस्ट है। योर ईगो इज द रेगुलेटर टू बैलेंस बिटवीन द सुपर ईगो एंड द इड। दिस इज व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड इन द डेली लाइफ। सर दबे हुए इमोशंस का एक वर्ड बताया था आपने, कैथारसिस बताया था। ये यहां पे देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म में एक वर्ड हम पढ़ेंगे, कैथारसिस। सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इमोशंस का जो कलेक्शन है, जो आपके अंदर एक निगेटिविटी भर गई है, उसी को हम बोलते हैं कैथारसिस। इसी को निकालना होता है पूरी स्पिरिचुअलिटी में, और रिलीजन इसको खत्म करना चाहता है। तभी आप मुक्त हो सकते हैं। जो भी आपने दमन किया है, जो आप भोग नहीं पाए, जो इड आप भोग नहीं पाए, प्लेजर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसे आपने दमन किया, सप्रेस किया, रिप्रेस किया बिकॉज ऑफ द सुपर ईगो, और वो सारी सप्रेस्ड चीजें जो इड की थी वो कैथारसिस बन जाती हैं। अ टर्म फॉर द डिससैटिस्फाइड नेगेटिव फीलिंग्स कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे बचपन से नहीं मिला, एंड यू कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम इन योर लाइफ कि एक दिन खूब पैसे कमाऊंगा और अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा, तब तक आप उसको दबा के रखते हो।
लेकिन फिर जब आप खूब सारी पैसे कमाते हो फिर आपकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फिर आप अपने प्लेजर्स को पूरा नहीं कर पाते, और इस तरह से पूरी जिंदगी एक दमन, एक सप्रेशन, एक रिप्रेशन की जिंदगी बन जाती है, और पूरी जिंदगी ये ट्रांसकैथारसिस कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद अगली लाइफ में ट्रांसफर भी हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी बैड, वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस. Oral, anal, phallic, latency, and genitals. These are the multiple stages when the any child grows from the infant stage till the teenage stage. हम 5 स्टेजेस में कवर करते हैं. जैसे बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो खाना सीखता है, उसके मोशंस कंट्रोल नहीं होते, उसकी यूरिन टॉयलेट कंट्रोल नहीं होती, उसकी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती, वो चल नहीं पाता, लेकिन वो दूध पीता है. यस और नो? उसे पता है कि दूध कैसे सक करना है. तो इसलिए ये स्टेज कौन सी कहलाती है? फिर उसके बाद धीरे से वो टॉयलेट सीखता है कि कंट्रोल कैसे करना है. जैसे छोटा बच्चा होता है तो हर 15-20 मिनट में, आधा घंटे में, 2 घंटे में यूरिनेट करता है, यहाँ वहां पेशाब कर दे, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है, वो मोशंस करेगा, उसके कंट्रोल में नहीं. लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2.5-3 साल का होता है वो धीरे धीरे सीखने लगता है कि मुझे बेड वेट नहीं करना है, मुझे बिस्तर गीला नहीं करना है, राइट मेरे को टाइमली पेरेंट्स को बताना है कि पापा मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, एंड ऑल दैट. स्कूल जाते ही बच्चा ये सब सीखता है. ये कौन सी स्टेज होती है? एनल स्टेज. वी आर कंट्रोलिंग धीरे धीरे. कैसे कंट्रोल? फिर थोड़ा बड़ा मिलता है तो फिर फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज आती है. तो ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, जो बहुत फेमस हुई, बहुत मतलब एकदम बिग बैंग फेमस, एकदम से लोगों में इंटरेस्ट आया, स्पेशली द यंग. और इस टाइम की जो स्टेजेस हैं साइकोसेक्सुअल डेवलप, और ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, ये सोच के नहीं हो रहा है, दिस इज नेचुरल अनकॉन्शियस प्रोसेस. साथ ही साथ स्ट्रक्चर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम डिफेंस कैसे करते हैं अपने मैकेनिज्म. जैसे हमने देखा था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एटीट्यूड, और वो आज उसका हमको बहुत बड़ा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा इन द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.